Hello, my dear student. Today we will start our next chapter in physics, class 10th. Okay, chapter number 11, human eye. Okay, so this world be visible and colorful for us because of God gift to us is eyes. With the help of our eyes, we can able to see the world around us and we can see the colorful world. We can analyze the 3D effect of all the object. So for that God gives us eyes. So eyes is very wonderful organ for human being. And last lesson we are learned about the lens and image formation by lens. So our eyes is also nothing but a lens. Okay, so in this chapter we have to study about structure of human eye, how human eyes function to see the image, and what different kind of defect we can face in human eye and what is the solution of it. Okay, so we will start from the structure of human eye. Okay, so here you can see the diagram of human eye. Okay, so human eye is spherical ball. Okay, approximate diameter is 2.5 सेंटीमीटर. Okay, so human eye है वो एक spherical ball है जिसका approximate diameter जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है. ठीक है. Now human eye is divided into different parts. Okay, it is divided into different parts. Okay, so let's we see the part one by one. Okay, so first is the cornea. Okay, the outermost part of our eyes. Okay, the outermost part of our eye, which is white in color and transparent. Okay, this part is known as a cornea. Okay, and this part is protect our eyes from outside environment, from accident, from any object outside. Okay, eye should protecting us with the help of this part, and this is the outermost part which is white in color and transparent membrane is known as a cornea, as well as the most of the light entering through our eye is reflected by this part, cornea. Because when the light is entering from one media to another media, okay, it reflects. So here the light coming through the air is entering our eye from this cornea. Okay, so most of the light is reflected to this part is a cornea. So very first part of human eye, okay, is cornea. This is nothing but a outermost white and transparent part protect our eyes and it reflect most of the light. Okay, now second part of our eye is iris. Okay, so inside our eyes we are see that the circular ring. Okay, the circular ring of different color. circular ring जैसे ह्यूमन आइज होता है ऐसे हमारा आइज है. Okay, so this is white and transparent part. Okay, this is known as a cornea. अब इनके अंदर ये जो पार्ट होता है जिसकी वजह से अलग अलग ह्यूमन है उनकी कलर का जो कलर है आइस का वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें देखने को मिलता है. उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है. जो कलर वेरिएशन देखने को मिलता है जो कलर है इट डिपेंड्स ऑन दिस spherical ring. This spherical ring is known as a iris. It is known as a iris. Okay, so what is iris? Okay, so iris it is a dark muscular diaphragm
that control the size of the pupil. Okay, and the color of eye is depend on it, and it controls the amount of light entering in eye. Okay, तो ये जो पार्ट है, this part is known as iris. Okay, it is a dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. Okay, मतलब आगे का एक जो पार्ट है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, इसके अंदर जो सेंट्रल हॉल होता है, जो आई के अंदर हमें दिखाई देता है ब्लैक स्पॉट. ओके, दिस इज नथिंग बट ए प्यूपिल. ओके, so it controls the size of pupil. Okay, and the color of eyes depend on it. Okay, कलर जो आइस का होता है वो आइरिस पे डिपेंड होता है, एंड इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आई. हमारे आइस के अंदर जो लाइट एंटर होता है, इसको कंट्रोल करने का वर्क है वो आइरिस करते हैं. और कैसे करते हैं? कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल. यहाँ पे जो ये पार्ट है, दिस पार्ट इज नथिंग बट ए प्यूपिल. तो उनका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल द सेंट्रल हॉल इन iris and control the amount of light entering in our eyes. तो pupil और iris है, they are combinedly work, वो दोनों साथ में काम करते हैं. कैसे काम करते हैं? यहाँ पे जो ये iris है, ठीक है, उनके सेंट्रल पार्ट का ये होल है वो pupil है. तो iris का फंक्शन है कि कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आइज. तो जो लाइट हमारे आइज के अंदर एंटर होता है वो किससे एंटर होता है? प्यूपिल से एंटर होता है. तो ये क्या करता है? आइरिस है, वो प्यूपिल की साइज है उनको कंट्रोल करते हैं. एज पर द नीड उनकी साइज को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं. तो इनका रोल फंक्शन क्या है एक्चुअल में हम देखें तो, प्रैक्टिकल वे से देखें तो, if we want to see any object through our eyes, so the light from this object is enter into our eyes, then we are able to see this object, otherwise we are not able to see this object. मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमें देखना है वो ऑब्जेक्ट से लाइट हमारे आइज के अंदर एंटर होना चाहिए. तो एंटर कहां से हो रहा है? आइरिस के बीच में जो होल है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, उसके अंदर से लाइट एंटर होता है. अब वो लाइट एंटरिंग कभी ज्यादा होना चाहिए, कभी कम होना चाहिए. तो ऐसे क्यों होना चाहिए? कि when if any object is in a more light, वहां पे लाइट ज्यादा है, ठीक है, तो it requires the less light to enter in our eyes. ज्यादा लाइट हमारे आई में एंटर होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ब्राइट प्लेस पे पड़ा हुआ है. So at that time we need the minimum light to enter in our eye, so we require the size of pupil is less. Okay, so iris can control the size of pupil. When any object is placed in a dark area, so at that time more number of light should be enter in our eyes, then we are able to see the object. तो इसी टाइम पे ज्यादा लाइट हमारे आई में एंटर होना चाहिए, तो उनके लिए प्यूपिल का साइज बड़ा होना चाहिए. जो प्यूपिल का साइज है उनको रेगुलेट करने का जो फंक्शन है वो आइरिस कर रहे हैं, और प्यूपिल के जरिए लाइट है वो हमारी आइज में एंटर हो रहा है. प्रैक्टिकल वे में हम इनको देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल जब हम थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, ठीक है, और मूवी स्टार्ट हो चुका है, हम थिएटर के अंदर एंट्री करते हैं, तो पूरा अंदर का जो हॉल है वो डार्क हॉल है. सो थोड़ी देर के लिए हम वहां पे कुछ देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम ब्राइट लाइट से एंटर कहाँ हुए हैं? डार्क लाइट में. तो पहले हमारे आइज के अंदर जो लाइट एंटर हो रहा था वो कम हो रहा था, अब हम डार्क प्लेस पे चले गए. डार्क प्लेस में हमें देखना है तो लाइट हमारे आइज में ज्यादा एंटर होना चाहिए. सो इट टेक्स सम टाइम टू इंक्रीज द साइज ऑफ प्यूपिल एंड एंटरिंग द मोर लाइट इनटू आवर आई. तो थोड़ी देर के बाद वी आर एबल टू सी इनसाइड द सिनेमा हॉल because the size of pupil is increased, so more light is enter into our eyes and we are able to see the object in a dark area. Similarly, when we are comes outside from the cinema hall, so for the few second बाहर का ऑब्जेक्ट देखने में हमें तकलीफ होता है, सेंसेशन मिलता है क्योंकि ज्यादा लाइट एंटर हो चुका है. तो अब
प्यूपिल का साइज डिक्रीज होना चाहिए, वी रिक्वायर द लेस लाइट टू एंटर इन अवर आइज, तो थोड़ी ही सेकंड में फिर से साइज चेंज हो जाता है और जो लाइट एंटर हो रहा है वो कम हो जाता है, एंड इजीली वी आर एबल टू सी द outside object at brightness. Okay, so this is the function of iris and pupil. Okay, now next one. Next is the aqueous humor. Okay, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है आइस का पोर्शन, यहाँ इनके इनसाइड में लिक्विड होता है, जो लिक्विड है उनको हम बोलते हैं aqueous humor, which maintain the fluid pressure and shape of the eye. हमारी आई से उनके अंदर का प्रेशर और हमारे आई से उनका शेप मेंटेन करने का जो वर्क है वो यहाँ पे भरा हुआ जो लिक्विड है वो कर रहे हैं, और जिसको हम जानते हैं aqueous humor के नाम से। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, तो ह्यूमर के आगे यहाँ पे क्या है, लेंस है। okay? This type of lens, तो this lens is nothing but a convex lens. यहाँ पे जो आई लेंस है वो convex lens है। okay? So lens, it is a convex lens. तो convex lens का फंक्शन क्या है, so it reflect the light, वो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। when the light is passed from the convex lens is refracted and it converges, okay, because it's a converging type of lens. So converge होके क्या करता है, it reflect the light and form the real inverted and diminished image on retina. अगले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किसी प्रकार की इमेज फॉर्मेशन होता है, इट कन्वर्जिंग लेंस, सो इट फॉर्म ए रियल डिमिनिश, ओके, एंड इन्वर्टेड इमेज। तो यहाँ पे ये जो लेंस है इसके अंदर से जो लाइट एंटर होगा वो लाइट यहाँ पे कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज हो गए, और यहाँ पे जो रेटिना दिया हुआ है यहाँ पे जो मिलेगा, वी आर गेटिंग रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज। यहाँ पे हमें इमेज मिलेगा, डिमिनिश इमेज मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। पर हमारी आई से हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो देखते हैं वो हमें इन्वर्टेड नहीं दिखता है, ठीक है, इरेक्ट दिखता है। दिस इज अनदर मैकेनिज्म इन आवर आईज व्हिच प्रेसिपिटेट द इमेज इन फॉर्म ऑफ ए इरेक्ट वन। इरेक्ट फॉर्म में हमें इमेज को कन्वर्ट करके देते हैं, जिसको लेके हम इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट इमेज देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे रेटिना पे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो इमेज फॉर्मेशन हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके आगे देखें तो दिस इज नथिंग बट ए सस्पेंसरी लिगामेंट। तो यहाँ पे जो ये लेंस है, लेंस को यहाँ पे सपोर्ट देना पड़ता है, लेंस को होल्ड करना होता है। तो लेंस को होल्ड करने के लिए यहाँ पे है सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इट सपोर्ट्स द होल्ड टू पोजीशन ऑफ ए लेंस। लेंस की पोजीशन को होल्ड करने के लिए यहाँ पे जो लिगामेंट्स दिया हुआ होता है वो लिगामेंट्स को हम बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट। द फंक्शन ऑफ इट इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ आई लेंस, आई लेंस को होल्ड करने के लिए वर्क करते हैं। इसके आगे देखें तो सिलिलरी मसल्स, सिलिलरी मसल्स, तो यहाँ पे जो लेंस है, लेंस के साथ यहाँ पे जो मसल्स जुड़े हुए होते हैं ये मसल्स को हम बोलेंगे सिलिलरी मसल्स। ठीक है, तो सिलिलरी मसल्स उसका फंक्शन क्या होता है, इट चेंजेस द थिकनेस ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग द लाइट रे ऑन द रेटिना। उसका फंक्शन क्या है, इट चेंजेस द साइज ऑफ दिस लेंस। ये जो लेंस है ये लेंस की साइज को ये चेंज करते हैं एज पर द नीड, कभी थिक चाहिए कभी थिन चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट इट चेंजेस द थिकनेस ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग द लाइट रे ऑन द रेटिना। जो यहाँ पे जो लाइट रेस आ रहा है लेंस से जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे रेटिना पे होना चाहिए। पिक से हमारी ये पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है, तो यहाँ पे हमें इमेज चाहिए। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करने के लिए वी रिक्वायर द डिफरेंट फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस
Okay, so the ciliary muscles is changing the focal length of a lens by changing the size of a lens. ऐसे क्यों करना होता है हम नेक्स्ट आगे जाके देखेंगे. अभी इतना जानते हैं कि ciliary muscles is changing the thickness of eye lens to focus the light rays on a retina. रेटिना पे फोकस करने के लिए या साइज है उनको चेंज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज विटेरियस ह्यूमर्स. तो यहाँ पे ये जो पार्ट है आइस का, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ होता है जिसमें 99% वाटर होता है. तो ये लिक्विड भी क्या है कि आई की जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वर्क करता है, जिसको हम बोलते हैं विटेरियस ह्यूमर्स. ठीक. नाउ रेटिना. यहाँ पे ये जो आई का पार्ट है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट रेटिना. रेटिना क्या है? इट इज नथिंग बट ए वन काइंड ऑफ स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म. क्योंकि यहाँ पे जो लेंस है उसे रियल और इन्वर्टेड इमेज जो फॉर्म हो रही है वो रियलिटी इमेज फॉर्म एक स्क्रीन पे हो रही है. द स्क्रीन फॉर द आईज इज नथिंग बट ए रेटिना. ठीक है, विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स एंड रॉड. विच कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉन्स एंड रॉड. यहाँ पे ये कॉन्स एंड रॉड है, उसमें वो लाइट सेंसिटिविटी का ओके और कलर आइडेंटिफिकेशन का वर्क करते हैं. कभी जो लाइट एंटरिंग होती है वो डिम लाइट होती है, कभी लाइट एंटर होता है वो ब्राइट लाइट होता है. तो ब्राइट लाइट सेंसेशन है, डार्क लाइट सेंसेशन है, उनको वो देखते हैं. और डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट होते हैं, तो कलर्स कौन सा है उनको विजुलाइज करते हैं. और कौन सा रॉड से वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उनको मेजर करके, उनको सेंसेशन करके रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन करने का वर्क करते हैं. ठीक है. जैसे हमारा टीवी है, टीवी के अंदर क्या होता है? डॉट डॉट होता है, एलईडी होता है. और अलग अलग कलर की एलईडी जो होती है उसमें सेंसेशन होता है. और अलग अलग कलर की एलईडी जब ब्राइट लाइट होती है तब टीवी में हमें कोई पिक्चर देखने को मिलता है. सिमिलरली यहाँ पे जो स्क्रीन है वो स्क्रीन में कॉन्स और रॉड्स है जो हाई इंटेंसिटी लाइट और लो इंटेंसिटी लाइट के लिए वर्क कर रहे हैं. और अकॉर्डिंग टू दैट वो डिफरेंट कलर सेंसेशन दे रहे हैं. सो वी आर एबल टू सी द परफेक्ट इमेज ऑन टू द रेटिना. तो रेटिना पे हमें परफेक्ट इमेज मिल रही है. अब रेटिना वो इमेज को क्या कर रहे हैं? ऑप्टिक नर्व. यहां से जो रेटिना, यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है. ये ऑप्टिक नर्व है जो इमेज है उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो जो है उनको हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का वो काम करते हैं. ठीक है. द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व इज इट ट्रांसमिट द ऑल विजुअल इंफॉर्मेशन टू ब्रेन. जितनी भी विजुअल इंफॉर्मेशन है वो सारी विजुअल इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम है, वो काम करते हैं ऑप्टिक नर्व. और बाद में जो ब्रेन है वो इमेज को इंटरप्रेट करते हैं और इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट इमेज में कन्वर्ट करके वो इमेज को हमें विजुअलाइज करवाते हैं. ठीक है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स है, वो अलग अलग पार्ट का क्या फंक्शन है, किस प्रकार वर्क होता है, हमने यहाँ पे देखा. वंस अगेन एक बार हम उनको रिपीट कर लेते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई और उसका फंक्शन क्या है. द फर्स्ट इज द कॉर्निया. इन आवर आईज द आउटर मोस्ट व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट लेयर membrane is nothing but a cornea is protecting our eyes and most of the light is refracted through this cornea. Okay, inside this cornea we have a circular ring, okay, of a blue type, black type, brownish type color. Different color of light is this. It is known as a iris. It is a dark muscular diaphragm that control the size of pupil. So inside this iris, small dot, black dot is there, hole is there. It is known as a pupil. So it's control the size of pupil and the color of eyes depends on it. And the light entering in our eyes is controlled by iris by changing the size of pupil. Okay. Now pupil, so it is a central hole in iris and it controls the amount of light enter into our eyes. Okay. Then aqueous humor, तो आंख के अंदर है
ठीक है। एक लिक्विड होता है जो लिक्विड या फ्लूइड प्रेशर को मेंटेन करते हैं और हमारी आइस का शेप है उनको मेंटेन करते हैं, वो लिक्विड को हम बोलेंगे एक्वेस ह्यूमर। अब एक्वेस ह्यूमर के जस्ट पीछे देखा जाए तो लेंस होता है, ओके जो लेंस इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो भी लाइट एंटर हो रहा है वो लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, इट इज कन्वर्जिंग द लाइट and it form a real inverted diminished image onto a retina, okay? अब ये जो लेंस है, लेंस को होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट्स होता है, ओके इट सपोर्ट द होल्ड द पोजीशन ऑफ ए लेंस, लेंस की पोजीशन को हेल्ड करने के लिए, होल्ड करने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। और वी नीड टू चेंज द साइज ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस हमें चेंज करना होता है, वो चेंज करने के लिए लेंस है उनके साथ सिलिलरी मसल्स होते हैं। सिलिलरी मसल्स का जो फंक्शन है, इट चेंजेस द थिकनेस ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग द लाइट रेज ऑन द रेटिना। जो लाइट रेस है उनको रेटिना पे फोकस करना है, उसके लिए उनकी थिकनेस को चेंज करना जरूरी होता है, उसकी फोकल लेंथ को चेंज करना जरूरी होता है। तो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने का वर्क है वो सिलिलरी मसल्स करते हैं, ठीक है। और आइस के इनर पार्ट है, इनर पार्ट वंस अगेन वहां पे जो लिक्विड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और वो हमारे आइस को सपोर्ट करते हैं, उसका शेप को मेंटेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर्स, ठीक है। और लास्ट पार्ट ऑफ द आइस है, दिस इज नथिंग बट ए स्क्रीन फॉर द इमेज फॉर्मेशन, वी आर कॉल्ड इट्स रेटिना, इट कंटेन्स cones and rods and with the help of these cones and rods it form an image, and which image is a real and inverted image, and this real and inverted image is converted into the electrical signals and via optic nerve it reach to our brain, and our brain is interpret this image and make it erect, and we are able to see the image of any object in a world, okay. So these are the different part of human eyes, okay. So let us we see all the parts how it works, so I think now you can understand, okay. So now we will see about how our eyes is work। अब हमारे आइस वर्क कैसे करती है, वहां पे वर्क क्या होता है, किस प्रकार का होता है, जिसको लाके इमेज फॉर्मेशन हो सकता है, okay? Okay, now let us see the working of human eyes। हम जानते हैं कि हमारी ह्यूमन आइज है जिसके जरिए हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हमसे नजदीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हमसे दूर है, चाहे वो ऑब्जेक्ट कोई भी एंगल पे है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं, किस प्रकार देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था लेंस फॉर्मूला, ठीक। तो लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ओके। सो हियर आवर ह्यूमन आई इज ऑल्सो नथिंग बट ए कॉन्वेक्स लेंस, वो भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर्मेशन के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई होगी। सो विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन आई कॉन्वेक्स लेंस वी आर गेटिंग इमेज इज रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश। और जैसे हमने देखा था, इफ वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, वी आर गेटिंग इमेज एट डिफरेंट प्लेसेस। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करते थे तो इमेज डिस्टेंस चेंज होता था, क्योंकि यहाँ पे जो हम लेंस यूज करते थे उनका फोकल लेंथ क्या था, फिक्स था। मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ जो है वो फिक्स होता है। So if u is change, v is change। जैसे u चेंज होता है इसी प्रकार v चेंज होता है। पर यहां पे जो हमारी ह्यूमन आइज जो है, ठीक है, अब ह्यूमन आइज के लिए क्या है, v जो है वो फिक्स है, v क्या है, फिक्स है। मतलब जो हमारी ह्यूमन आइज है उसमें क्या है,
ये जो लेंस है और इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उनके लिए इमेज डिस्टेंस v है वो फिक्स है, उनकी वैल्यू होते हैं अप्रोक्सीमेटली इट इज 25 सेंटीमीटर। सॉरी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है v हमेशा क्या रहने वाला है, फिक्स, वी कैन नॉट चेंज इट, क्योंकि यहाँ पे हमारा लेंस है और यहाँ पे हमारी स्क्रीन है रेटिना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा क्या है, फिक्स। साइज ऑफ आवर आई, हमारे आई की जो साइज है तो अप्रोक्सीमेट साइज 2.5 सेंटीमीटर उनकी साइज रहती है, तो v हमेशा फिक्स है, तो यहाँ पे v फिक्स है। अब u क्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब हम नजदीक का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे आईज के सामने है उनका डिस्टेंस फिक्स नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला में अगर ये फिक्स वैल्यू है, अगर ये वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें एफ को चेंज करना ही पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। तो यहां पे एफ क्या होगा, चेंज होगा। Okay, so this is the basic difference in our eyes convex lens and which convex lens we are using in our routine life। जो ग्लास से बना हुआ convex lens हम यूज करते हैं वहां पे फोकल लेंथ फिक्स होती है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होता है इमेज डिस्टेंस चेंज होता है। यहाँ पे हमारा इमेज डिस्टेंस फिक्स है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो वी मस्ट हैव टू चेंज द फोकल लेंथ। जो आइस की फोकल लेंथ है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ये आई लेंस है इनकी फोकल लेंथ हमें बदलनी पड़ेगी, मतलब एज पर द नीड। कभी ये जो आई लेंस है इनको थिक करना पड़ेगा, कभी इनको थिन करना पड़ेगा, कभी इनको थिक करना पड़ेगा, कभी इनको थिन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस फॉर्मूला मस्ट बी अप्लाई। ये फॉर्मूला तो अप्लाई होने वाला ही है। ठीक है, 1/v इक्वल -1/u इक्वल 1/f। ठीक है, यहाँ पे हमारा v फिक्स है, तो अगर u चेंज होगा तो f को चेंज करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि हमारा आई जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है उसकी जो साइज है वो चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज करने का वर्क कौन कर रहे हैं, तो आगे हमने देखा ये चेंज करने का वर्क किसका है, सिलिलरी मसल्स का जो वर्क है वो वर्क हमने देखा। ठीक है, यहाँ पे हमारी आई से यहाँ पे जो मसल्स जो है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिलिलरी मसल्स। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, चेंजिंग द साइज ऑफ दिस लेंस। ये जो लेंस है इसकी साइज चेंज करने का वर्क किसका है, सिलिलरी मसल्स का है। तो कैसे चेंज होता है, तो ये सिलिलरी मसल्स है। ठीक है, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है सिलिलरी मसल्स के लिए। एक तो सिलिलरी मसल्स है वो रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है, और एक तो सिलिलरी मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि ये हमारा आई लेंस है। ठीक है, अब ये हमारे सिलिलरी मसल्स है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिलिलरी मसल्स रिलैक्स होता है। रिलैक्स होता है मतलब क्या हो जाता है, ये सिलिलरी मसल्स ऐसे हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। यहाँ पे लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और थिन लेंस होगा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यही सिलिलरी मसल्स है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एज पर द नीड, जरूरत के हिसाब से इनकी फोकल लेंथ हमें चेंज करना होता है। तो जो फोकल लेंथ चेंज करना होता है, ठीक है,
वो फोकल लेंथ चेंज किसकी वजह से होता है लेंस का? सिलिलरी मसल्स की वजह से होता है। जब सिलिलरी मसल्स क्या होता है? रिलैक्स होते हैं तो यह लेंस को ऊपर की तरफ खींचते हैं। ऊपर की तरफ खींचते हैं मतलब लेंस क्या हो जाता है? थीन हो जाता है। थीन हो जाता है तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। और जब सिलिलरी मसल से वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लेंस को क्या करते हैं? दबाते हैं तो लेंस क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब जो लेंस है वो अपने आप अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो थिकनेस है, उनको वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलिलरी मसल्स। ये जो प्रॉपर्टीज है लेंस की, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आवर आईज। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आवर आईज। पावर ऑफ accommodation of eyes मतलब क्या है? The ability of eye lens to change its focal length. Okay, the ability of eye lens to change its focal length. Okay, जो आइस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज करने की एबिलिटी जो है कि कितना वो उनको इंक्रीज कर सकते हैं, कितना वो डिक्रीज कर सकते हैं, इनको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइस। ओके, सो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, जिसकी वजह से आइस है उनके अंदर जो लेंस है उनकी साइज चेंज होती है और वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। जस्ट एग्जांपल क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है चेंज और कैसे हम इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, आई लेंस है। अब इनके साथ ये सिलिलरी मसल्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट रेस जो एंटर हो रहे हैं, ठीक है, इसका यहाँ पे जो रेटिना है यहाँ पे क्या करना है? हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि व्हेन द लाइट ऑब्जेक्ट एट फार डिस्टेंस, जब दूर पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, फार डिस्टेंस पे होता है, तब क्या होता है? ये जो आई लेंस है, ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो दूर पे है, मतलब वॉट एवर द रेस कमिंग वी कैन कंसिडर द रेस इज पैरेलल, okay, and it enters in our eyes, and at that time we required thin lens and we required the f should be increased, focal length increase होना चाहिए और लेंस जो है वो हमारा क्या होना चाहिए? थीन लेंस होना चाहिए। ठीक है, और फोकल लेंथ इंक्रीज होके we should get the image on retina, we should get the image on retina। तो ये जो है इनको हम बोलते हैं फार पॉइंट। ओके, तो फार पॉइंट इट मींस द मैक्सिमम डिस्टेंस okay, from we can see the object, okay, and for the normal eye, okay, ये जो फार पॉइंट है वो होता है इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम दूरी पे जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं आइस के जरिए, उनको बोलते हैं फार पॉइंट। और जितना ऑब्जेक्ट दूर है वो दूर के ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करते हैं तो लाइट कमिंग इज पैरेलल, और पैरेलल लाइट को हमें कन्वर्स करना है तो वी रिक्वायर द मोर फोकल लेंथ, सो वी रिक्वायर द थिन लेंस। सो सिलियरी मसल्स यहाँ पे रिलैक्स होकर लेंस को थिन करते हैं, उसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज करते हैं एंड द इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म होती है एंड वी आर एबल टू सी द इमेज। और ये नॉर्मल आइज के लिए फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट है, कि इनफाइनाइट की कोई भी चीज को हम आराम से देख सकते हैं। ठीक है,
अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर हॉरिजॉन्टल पे तो हम दिखते हैं तो कुछ दूर तक दिखाई देता है, ज्यादा नहीं दिखाई देता है, तो एक्चुअल में हमारा जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट है, तो हमें दूरी पे दिखाई देना चाहिए। यस, तो हॉरिजॉन्टल पे जब हम देखते हैं तब हम दूर की चीज को ज्यादा नहीं देख सकते, बिकॉज यू नो दैट आवर अर्थ इज ए स्फीयर। तो जो दूर की चीज है वो है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल। पर आपको देखना है कि एक्चुअली हम इनफाइनाइट प्लेस तक देख सकते हैं या नहीं देखते, तो ऊपर ऐसे आप आकाश में देखो, सो वी आर एबल टू सी द स्टार, स्टार को हम देख सकते हैं, मतलब वी नो दैट स्टार इज सो फार फ्रॉम द अर्थ, फिर भी हम वो स्टार को देख सकते हैं। मतलब क्या है, हमारा हमारा जो फार पॉइंट है नॉर्मल आइज के लिए है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है, अब हम कंसीडर करते हैं कि तो ऑब्जेक्ट एट नियर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो हमारी आइस लेंस है उससे नजदीक का कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हमें देखना है। ये नजदीक का ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें से जो रेल्स आते हैं, ठीक है, अब उनको कन्वर्ट करके रेटिना पे लेना है, तो हियर वी रिक्वायर्ड लेस फोकल लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हमें फोकल लेंथ लेस चाहिए, ठीक है, कम चाहिए फोकल लेंथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंस है इनको थिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये थिक करना है तो कैसे होगा, सिलियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और लेंस थिक हो जाएगा तो वी आर गेटिंग द इमेज ऑन रेटिना, रेटिना पे हमें इमेज मिल सकता है। सो दिस पॉइंट इज नोन एज near point. So this is what the minimum distance from we can see the object, okay, and for the normal eye the near point is 25 centimeter। हम कितने नजदीक से कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है, वो है हमारा नियर पॉइंट, ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट नियर होता है तो वी रिक्वायर्ड द लेस फोकल लेंथ, सो वी रिक्वायर्ड द थिक लेंस, सो सिलियरी मस्कल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर उनकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं और उसका डाइवर्जिंग पावर है वो कम हो जाता है, ठीक है, सॉरी ज्यादा हो जाता है डाइवर्जिंग पावर, एंड वी आर एबल टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना। और हम देख सकते हैं तो नॉर्मल आइज के लिए ये जो है 25 सेंटीमीटर है, कि हमें बुक पढ़ना है तो अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर पे हम रखते हैं तो इजीली हम पढ़ सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से बुक्स को नजदीक रखते हैं तो हमारी आंख पे स्ट्रेन आता है, हम उनको ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब नियर जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, वो नियर डिस्टेंस है, वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो नॉर्मली हम उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ आवर आइस, कि हमारी आइस कैसे वर्किंग कर रही है और कैसे हम देख पाते हैं दूर के ऑब्जेक्ट को और नजदीक के ऑब्जेक्ट को। और नजदीक और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ पे हमारा इमेज डिस्टेंस फिक्स है, तो हमें फोकल लेंथ को चेंज करना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिक्स नहीं है। तो फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए हमारी ये लेंस है उनकी साइज को हमें चेंज करना है, उस साइज चेंज करने के लिए सिलियरी मसल्स वो हमारी सपोर्ट कर रही है, हेल्प कर रही है, ठीक है। तो इनका जो पावर है चेंज ऑफ इट्स साइज, ठीक है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, वो पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। तो जैसे दूर का ऑब्जेक्ट होता है तो हमारा जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है और वी कैन एबल टू सी द इमेज। अगर ऑब्जेक्ट नजदीक है तो हमारा आई लेंस है वो थिक हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, लेस हो जाती है, और वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन ए रेटिना। जो दूर का ऑब्जेक्ट हम इनफाइनाइट प्लेस से देख सकते हैं और नियर का ऑब्जेक्ट हम 25 सेंटीमीटर से देख सकते हैं। okay, so this is the working and function of our eyes, कि हमारे आइज से हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर ये तो सारी बात ठीक है, तो हमें एक ही आइस दिया होता तो क्या होता, दो आइस की क्या जरूरत थी। okay? अगर हमारे पास एक ही आइस होगा तो भी हम कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दो आई से तो भी कोई ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो दो की जरूरत क्यों है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उनको सिंगल डायमेंशन में देखना है तो वी कैन एबल टू सी विद द सिंगल आई, पर वही ऑब्जेक्ट को हम 3D वे में देखना है, रियल डायमेंशन देखना है, सो वी रिक्वायर द टू आइज, हमें दो आइज की जरूरत होती है जिसके जरिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट है
उनको 3D व्यू में देख सकते हैं, मतलब उनका डेप्थ कितना है, ठीक है, उनका हाइट कितना है, विड्थ कितना है, वो सारी चीजों को हम प्रॉपरली देख सकते हैं क्योंकि हमें दो आइस दिया है। अगर सिंगल आइस होता तो ये नहीं हो सकता। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं, आप खुद घर पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा एक बॉक्स लेना है छोटा सा, बॉक्स में यहाँ पे आपको एक हॉल बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो साइड है वो ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा बर्ड ले लो, ठीक है। अब बर्ड का यहाँ पे जो हेड है बर्ड का, वो यहाँ पे रख दो आप। अब ये बर्ड जो है, इनका बॉडी पार्ट है, आप यहाँ पे रख दो, और इनका जो लेग है इनको आप यहाँ पे फिक्स कर दो, ठीक है। एक ही बर्ड है जिनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ये होल से आप ये बर्ड को देखो, एक आइस की वजह से, एक आइस से आप ये बर्ड को देखेंगे तो ये बर्ड है आपको फुल बर्ड दिखाई देगा। आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि बर्ड है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपको सिंगल फिगर दिखेगा बर्ड का, ठीक है। वही बर्ड को आप यहाँ से साइड व्यू से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग पार्ट दिखाई देगा। ओके, दिस इज द रीजन, क्योंकि हमें पता नहीं, क्योंकि ये पार्ट हमने कैसे अरेंज किया है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, एग्जैक्टली हमने कर दिया है अरेंज, ठीक है। तो हम सामने से सिंगल आई से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, 3D इफेक्ट नहीं दिखता है, मतलब हमें क्या दिखता है, यहाँ पे फेस, यहाँ पे बॉडी और नीचे पैर, तो हमें पूरा जो बर्ड दिखता है वो क्या दिखेगा, सिंगल बर्ड दिखेगा, क्योंकि वी आर नॉट एबल टू एनालाइज द 3D व्यू, ओके। तो सिंगल बर्ड दिखता है सिंगल आई से। अगर इन्हीं को हम यहाँ से देखेंगे तो पता चलेगा ये तो अलग अलग है भाई, ठीक है। तो इसीलिए हमें 2 आइस की जरूरत है कि जिसके जरिए हम 3 डायमेंशनल चीज को देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन